Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. 90 entities, including Indian refiner Nayara Energy Limited, have been sanctioned by the United Kingdom as part of its latest crackdown on Russian revenue streams. The British government said its targeted firms and assets, facilitating Moscow's oil trade in coordinated efforts to weaken President Vladimir Putin's financial resources amid the ongoing war in Ukraine. The sanction list includes 4 oil terminals in China, 44 tankers from the so-called Shadow Fleet transporting Russian crude, and India's Nayara Energy, which London claims imported 100 million barrels of Russian oil worth over $5 billion in 2024 alone. MEA spokesperson Randir Jaiswal, commenting on the sanctions, said India do not subscribe to any unilateral sanctions. The government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of the citizens. Especially when it comes to energy trade, he said. The latest sanctions announced by the UK, as I have said this earlier as well, and possibly most of you are aware of it as well, that we do not subscribe to any unilateral sanctions. Government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of its citizens. Indian companies source energy supplies from around the world while taking overall market conditions into account. We would stress that there should be no double standards, especially when it comes to energy trade. Congress leader Supriya Shinde had raised serious allegation against BJP MP Nishikant Dubey, saying that the Lokpal bench had sought his response within 4 weeks over a complaint of disproportionate assets. Noted that Dubey, a 4-time BJP MP and chairman of the Parliamentary Standing Committee on Communications and IT, was considered close to the Prime Minister and the Home Minister. She had also claimed that Dubey's wife assets had grown from 50 lakh in 2009 to around 32 crore in 2024, despite no corresponding increase in income. She had questioned the source of his wealth, alleging that it pointed to a clear case of disproportionate assets. Dubey also said that in his 2024 elections, affidavit had declared taking a 1.2 crore loan from Abhishek Jha, who himself has contested as an independent candidate against him. However, Srinath said that Jha had denied giving any such loan and there was no mention of it in his own affidavit. Srinath had also urged the ruling BJP to clarify the matter publicly, stating that as the Lokpal investigation continued, the party owed answers to the people. निशिकांत दुबे जी बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। उनकी बेहद निकटता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से, और ऐसे में उन पर कुछ बड़े संगीन आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर एक्चुअली लोकपाल ने जुलाई में ऑर्डर भी पास किया। लोकपाल की पूरी बेंच ने उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगते हुए आगे की क्या कार्रवाई है, किस नतीजे में पहुंच रहे हैं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जो उनसे जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट कहती है कि उनकी पत्नी का एसेट जो था वो 50 लाख रुपए था 2009 में। 2024 में 15 साल में उनका एसेट करीब 32 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उनकी इनकम में इस तरह का इजाफा नहीं हुआ। तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है। आपकी आय नहीं बढ़ी लेकिन आपके एसेट बढ़ते गए। कैसे बढ़े ये एसेट, कहां से ये पैसा आया? पहली बात तो ये। दूसरा एक और बड़ा संदिग्ध सवाल इस बात का है कि उनके एफिडेविट में 2024 के एफिडेविट में उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन अभिषेक झा नामक व्यक्ति से लिया। यह अभिषेक झा नामक व्यक्ति उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट बनकर चुनाव भी लड़े। उनका कहना है मैंने ऐसा कोई लोन नहीं दिया, उनके एफिडेविट में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये पैसा किसका है? तो 2 बड़े संदिग्ध बातें हैं, संपत्ति में इजाफा, आय का तालमेल ना होना, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, और ये जो लोन कहां से आया भगवान जाने। ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, लोकपाल इसकी जांच कर रहा है। लेकिन एक सांसद होने के नाते, बीजेपी सत्तारूढ़ दल होने के नाते इस पर स्पष्टीकरण दे और जनता के सवालों का जवाब दे, यही हमारी मांग है। Former Bihar Minister and father of Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary, Shahkuni Chaudhary, had praised his son's strong public connect, saying people have loved and trusted him since childhood.
He recalled ending caste tensions and preventing casualties during the 1989 and 2002 riots in Tarapur, adding that the goodwill from that time continues to inspire support from Samrat Chaudhary. Responding to comments made by Jan Suraj founder Prashant Kishore, Shahakuni Chaudhary launched a sharp attack saying Kishore has no shame and speaks without understanding. He added that Kishore should have verified documents before making allegation against Samrat Chaudhary. The Mahargathbandhan Shahakuni Chaudhary said that in democracy, people and everyone has the right to contest and make claims, but the final decision lies with the people. He also expressed confidence in the NDA government under Chief Minister Nitish Kumar, saying his governance has made the people of Bihar happy. आपकी कद्दावर सीट कह सकते हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, तारापुर को मैंने बहुत सींचा है। कितने यहाँ झगड़े लड़ाई थे, सबको मैंने खत्म किया। कितना जाति टेंशन था, उसको खत्म किया। और फिर उसी समय दो दंगे हुए। 89 का दंगा आपको याद है, और फिर 2002 में दंगा हुआ। मैं कोई कैजुअलिटी नहीं होने दिया, सारे लोगों को मैं सुरक्षित रखा, और सभी लोगों ने ऐसा प्यार दिया कि वो आज तक मेरे दिल में। लेकिन ये बताइए, वो प्यार क्या आपके बेटे को भी मिलेगा? सेम सहयोग? उससे ज्यादा मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि बचपन से उसको देखा है, लोगों ने पहचाना है, और सब जगह सम्राट हर एक मामले में जनता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत प्यार में है। क्योंकि वो एनडीए, सारे एनडीए के ही दल है, घटक दल है, लेकिन अगर बात करें तो इसके पहले अगर लगातार देखा गया तो जेडीयू यानी कि तीर का वो दबदबा यहाँ पे कायम रहा। आपकी बात वो तो बड़े बड़े लोगों की बात है, नीचे से तो चेंज होता नहीं है, ये तो ऊपर वाले चेंज करते हैं। किसको कौन सीट देना है नहीं देना है वो समझते हैं, नीचे का मैटर नहीं है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने डॉक्टर साहब को इस बार चुना है, उनके ओपोनेंट है सम्राट चौधरी, ये कैसे देखते हैं उनको, क्या लगता है आपको? न तो हमको लगता है कि पीके को दिमाग है, वो बिला दिमाग का आदमी है, उसको कोई लाज शर्म नहीं है। अगर वो थोड़ा सा भी ईमानदार और पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता तो सम्राट जी पर वो इल्जाम लगाता ही नहीं। इल्जाम लगाने के पहले उसको कागज देखना चाहिए, भाई पुलिस ने उसका क्या रिपोर्ट दिया है, पुलिस ने फाइनल किया, कोर्ट ने फाइनल किया, और जितने अफसर ने केस उस पर चलाया वो सारे अफसर सजावार हुए। और फिर चीफ सेक्रेटरी को मानवाधिकार ने ऑर्डर दिया कि 25,000 रुपया बाय चेक शकुनी चौधरी को भुगतान करा, है ना? तब उसके बाद भी आपको लाज नहीं लगता है, क्या बोलते हैं? मैंने कोई आदमी को अगर ज्ञान होगा, हमको लगता है पी के बोलता है, अगर दिमाग रहता तो पी के नहीं बोलता। महागठबंधन लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, एनडीए पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सरकार पर, और जीत का दावा करे, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो राहुल गांधी हो। आपको क्या लगता है? प्रजातंत्र में सभी को अपना अधिकार है कि वो अपना दावा करे जीत का, प्रजातंत्र में अपना अधिकार है, तो सब लोग अपना अपना मेहनत करते हैं। जीत तो जनता के हाथ में है, जनता जिसको ताकत देगा वही विधायक बनेगा, वही सरकार बनेगा। बिहार की राजनीति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लंबा आपका अनुभव रहा है, इस बार चुनाव को कैसे देखते हैं? अगर एनडीए की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस बार देखिए, प्रधानमंत्री जी देश का ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं कि हर एक जनता खुश है, और बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसका मुखिया नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ने कार्यों से जनता को खुश कर दिया है। आप देखेंगे रिजल्ट इस बार एक तरफा न कहीं चला जाए। हाँ, धन्यवाद हमसे बात। Following the first year anniversary of the National Conference Government in the Union Territory of Jammu and Kashmir, Chief Minister Omar Abdullah asserted that the solution of all Jammu and Kashmir's problems lies in restoring statehood.
He further said that over the last year, the effort has been to improve the lives of people there. यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि Prime Minister Narendra Modi had announced that Google had decided to make a major investment in Andhra Pradesh to build India's first artificial intelligence hub. He had stated that the project would include powerful AI infrastructure, data center capacity, large-scale energy resources, and an expanded fiber optic network. The Prime Minister had said that a new international subsea gateway would also be built, consisting of several subsea cables connecting Visakhapatnam on India's eastern coast to global network. He had emphasized that this project would establish Visakhapatnam as a leading AI and connectivity hub, serving not only in India, the entire world. Modi had also conveyed his congratulations to the people of Andhra Pradesh and had commended Chief Minister Chandrababu Naidu for his vision in making the state global technology destination. आज भारत की और आंध्र प्रदेश की स्पीड और स्कोप, इसको पूरी दुनिया देख रही है। 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में गूगल ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। మిత్రులారా, ఈ రోజు భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వేగం మరియు సామర్థ్యం యావత్ ప్రపంచం గమనిస్తుంది. 2 రోజుల క్రితం గూగుల్ లాంటి ప్రధానమైన సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పెద్ద పెట్టుబడిని కూడా ప్రకటించింది. गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। నిన్న గూగుల్తో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాను, వాళ్ళు కూడా నాకు చెప్పారు, అమెరికా బయట చాలా పెట్టుబడులు మా ఉన్నాయి, కానీ అన్నిటికంటే అందులో పెద్ద పెట్టుబడి మేము ఆంధ్రాలో నేడు పెట్టబోతున్నామని వాళ్ళందరూ కూడా నాకు చెప్పారు. ఈ కొత్త ఏఐ హబ్ లో శక్తివంతమైన ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అలాగే డేటా సెంటర్ సామర్థ్యం, పెద్ద ఎత్తున శక్తి వనరులు మరియు విస్తరించిన ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్ కూడా ఉండబోతున్నాయి. साथियों,
गूगल के इस एआई हब इन्वेस्टमेंट में एक नया इंटरनेशनल सबसी गेटवे बनाया जाएगा। इसमें कई इंटरनेशनल सबसी केबल्स शामिल होंगे जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। మిత్రులారా, ఈ గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హబ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెట్టుబడితో కొత్త అంతర్జాతీయ సబ్సీ గేట్వే కూడా తయారవబోతుంది. ఇందులో అంతర్జాతీయ సబ్సీ కేబుల్ వల్ల మన భారతదేశం యొక్క తూర్పు తీరంలో ఉన్న విశాఖపట్నం నగరం మరింత బలోపేతమై ఈ కేబుల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ చేరుకోబోతున్నాయి. साथियों, इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम एक एआई और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होगा। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेवा देगा। मैं इसके लिए आंध्र का लोगों को विशेष बधाई देता हूं और चंद्रबाबू के विजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। Eminent industrialist and Trident Group Chairman Emeritus Rajinder Gupta has been declared elected unopposed to the Rajya Sabha from Punjab following the closure of the nomination withdrawal deadline on Thursday afternoon. Returning officer Ram Lok handed over the certificate to election to Mr. Gupta in the presence of Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhawan. Gupta was accompanied by his wife during the formal ceremony held at the Punjab Vidhan Sabha complex. थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी, देखिए जी, मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी का भी, पूरी पंजाब लोगों का भी। ये जिम्मेवारी मिली है, इसको निभाने का काम शुरू करेंगे। किस तरीके से पंजाब की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, हारमोनी के लिए काम हो सके, जितना हो सके उतना कर पाएंगे। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, सोच होती है, क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री भी ब्रीफ कर रहे थे कि इस तरीके से आपको बेटे एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। यही जी कि हमारी स्टेट तरक्की करे और करे, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सबकी हो, दैट्स ऑल। और जो पार्टी का हुक्म रहेगा, जो लोगों की आशा रहेंगी, उससे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जितनी हमारी, पहले तो परमात्मा जो विवेक देगा, लोग जो साथ देंगे, और आप लोगों का भी साथ चाहिए हर बात के लिए, और विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टांस। देखिए, उद्योगपति के तौर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अभी भी शुरू से कहता हूं कि वो एक ऑक्यूपेशन है, पैशन नहीं है। पैशन मेरा आज भी कि किस तरीके से हम लोगों की सेवा कर सकें, हमारी स्टेट आगे निकल सके, खुशहाली हो, शांति हो, भाईचारा हो, और फिर हमारी स्टेट हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट बन सके। कदे सोचा सीगा जी तुसी इस तरह दा इनिंग्स भी जड़ी शुरू करोगे? देखिए, ये तो कहना सोचा नहीं सोचा, ये सब कुदरत की बातें होती हैं। सोचता तो बंदा हर एक, ये नहीं कि मैंने सोचा नहीं था, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इट हैपेंड। जो किस्मत में जब होना होता है, भगवान ने या वाहिगुरु ने जो तो हुक्म लाना होता है, वो उदा ही हुक्म होता है। मैं अजे भी कहूँगा कि 2 गल्लां कि अगर मैं पंजाब की सिक्ख्या रखनी होवे, मन नीवा ते मत उच्ची, इस सोच नूं लैके अगे चलांगे। और जो असीं कहने हैं कि बस जो ने निमानिया दा मान उन्हें उपर वाले ने रखना है, वो उपर वाले दे हथ है, वो किन्ना करवा सकता है, किन्ना करना है। और जो विवेक बुद्धि उपरों आनी है, जो परमात्मा वाहिगुरु ये ताकत बख्शे कि असीं अपने स्टेट लिए एक एसेट साबित हो सकीए, और ऐसा लगे कि अगर साढ़े ते जिम्मेवारी या भार पाया है, असीं उन्हें पूरे तरीके निभा सकीए। Father of the late Captain Sumit Sabharwal, who was the pilot in command of Air India pilot in a June crash in Ahmedabad that killed 241 people, has approached the Supreme Court seeking a retired judge monitored fair, transparent and technically sound probe into the crash of Air India Boeing 787 Dreamliner aircraft. Filed a petition during the court to constitute a judicially monitored inquiry committee headed by the retired Supreme Court judge and comprising independent aviation expert. The plea said the probe presently being undertaken by the Union Ministry of Civil Aviation and the Directorate General of Civil Aviation, and the preliminary report dated June 15 submitted pursuant to the investigation are defective and suffer from serious infirmities and preservatives.
July 12 be treated as closed and all relevant materials, data and records be transferred to the judicially monitored committee or court of inquiry. It has said that the preliminary report suffers from serious technical defects and omission which render the conclusion unreliable. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath accused Congress and RJD of opposing development and promoting divisive politics. He said that NDA is taking forward Virasat and Vikas in Bihar while the opposition is running a campaign against progress. Yogi alleged that the Congress and RJD want burqa, not development, claiming they seek to exploit the poor by encouraging fake voting. Not only that, but he also spoke on Lord Ram and questioning the existence of Lord Ram and Lord Krishna allowing infiltrators into the country during its rule, leading to chaos. He further criticized RJD, saying it worked only for the benefit of the one family. While Lalu Prasad Yadav considers only his own family, Prime Minister Modi has considered every people as his family. He added that the NDA's double-engine government is committed to Bihar's overall development. भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वहां विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, बिहार की पहचान आज मेट्रो के रूप में, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के रूप में, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस वे के रूप में,
एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.